صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، وہ ایسی شخصیات یا ایسی معتبر شخصیات نہیں ہے کہ جن کو اگر کوئی گالی دے تو ہم چپ چاپ اسے سہ لیں یا ہم صرف نظر کریں یا ہم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے اس کو جانے دیں۔ صحابہ کرام چونکہ قرآنی شخصیات ہیں، وہ تورات، زبور اور انجیل کے اندر ان کے تذکرے موجود تھے، وہ آسمانی شخصیات ہیں، وہ قدسی شخصیات ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے تورات کے اندر ان کا ذکر فرمایا، انجیل کے اندر ان کا ذکر فرمایا، زبور کے اندر ان کا ذکر فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ صحابہ کرام تو محض ہماری طرح کے انسان تھے۔ ہاں، وہ ہماری طرح کے انسان ضرور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اس مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کے بعد ان کی تعظیم اور تکریم، ان کی عزت اور شرافت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب جس طرح قرآن اور قرآن کی ناموس کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے ناموس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہم دنیا کے اندر جب بھی کوئی مقدمہ قائم کرتے ہیں، جب بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں، ہم عدالتوں کے اندر اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہیں کہ جج صاحب میرا یہ مقدمہ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، تو جج صاحب بطور گواہ ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی پروف مانگتے ہیں، لوگوں کی گواہی مانگتے ہیں۔ جب تک ہم اس گواہ کی حفاظت نہ کر سکیں، جب تک ہم جج کے سامنے یہ ثابت نہ کریں کہ یہ جو گواہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ گواہ سچا ہے، صحیح ہے، سلامت ہے، اس کی عقل سلامت ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، تب تک اس جج کے سامنے میں اپنے دعوے کو صحیح طرح سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک وہ جج میرے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا، میں اس مقدمے کو جج کی عدالت میں ہار جاتا ہوں۔ آج اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اس دعوے کی دلیل صحابہ ہے۔ آج اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن لاریب کتاب ہے تو اس دعوے کی دلیل صحابہ ہے۔ آج اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو دین اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک آیا ہے تو اس دعوے کی دلیل صحابہ ہے۔ اب جب میں اپنے اس دعوے کے اوپر پیش کیے جانے والی مقدس ہستیوں یعنی صحابہ کرام کا دفاع نہ کر سکوں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ صحابہ کرام وہ سچی اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ صحابہ کرام وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ صحابہ کرام وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کے اندر، جن کے قلوب کے اندر وہ انوارات اور تجلیات تھی، وہ انوارات کا مظہر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے مصداق تھے، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ اولئک الذین امتحن اللہ رب العزت نے یہ جو مقام اور مرتبہ صحابہ کو دیا ہے اس کا مصداق یہی صحابہ ہیں، جب تک میں یہ ثابت نہ کر سکوں، میں یہ بھی ثابت نہیں کر سکوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، میں یہ بھی ثابت نہیں کر سکوں گا کہ قرآن لاریب کتاب ہے، میں یہ بھی ثابت نہیں کر سکوں گا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے۔ آج مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، صحابہ کی سچائی کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آج اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو تار تار کرتا ہے، اس کے ناموس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، وہ در حقیقت اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وہ در حقیقت رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ در حقیقت قرآن کی صداقت پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی وحدانیت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے مقام اور مرتبے کی حفاظت، صحابہ کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر کوئی اس علاقے کے اندر صحابہ کی ناموس کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو اہل ایمان اس کو اپنا ایمان کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور صحابہ کی ناموس کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر یہ سورہ فتح کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورۃ الفتح کے اندر یہ آیت اتری ہے۔ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے کا ذکر ہے، ایک سفر مبارک کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کی جو آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں اتاری ہے اس کا ہمیشہ ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا کوئی پیش منظر ہوتا ہے، اس کا کوئی شان نزول ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
6 हिजरी के अंदर मक्का से निकाले जाने के बाद 6 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि सहाबा कराम की एक जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि 6 साल तक हम काबा से दूर रहे हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख्वाब के ज़रिए से मुझे ये मुतनब्बे किया है कि सहाबा के ज़रिए से जाकर के मेरे दरबार में सरबा सुजूद होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 सहाबा को 1400 जानिसारों को साथ लिया, 70 ऊँट लिए और मक्का की तरफ मदीना से सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते के अंदर पहुँचे तो इतला मिली कि मक्का के मुशरिकीन ने एक काफ़िला भेजा है जो रास्ते में आपको इश्तिहाल दिलाएगा, जो रास्ते में आकर के आप पर हमलावर होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और वो आपको उम्रा की अदायगी से रोकने का मंसूबा बना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बदल करके मक्का के करीब पहुँचे, हुदैबिया के मकाम पर। हुदैबिया एक कुएं का नाम है जो मक्का से सिर्फ 16 मील की दूरी पर है। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को पैगाम भेजा कि मैं लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया, मैं जंग व जिदाल के लिए नहीं आया, मैं उम्रा की अदायगी के लिए आया हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उम्रा करके अपने असहाब के साथ वापस चला जाऊँगा। लेकिन वो चूँकि मुशरिकीन मक्का के ज़ख्म ताज़ा थे, 2 हिजरी के अंदर ग़ज़वा बदर का मार्का हुआ था जिसमें मुशरिकीन मक्का को हज़ीमत उठानी पड़ी थी। 3 हिजरी के अंदर उहद का मार्का हुआ था जिसके अंदर मुशरिकीन को नाकामी का सामना हुआ था। 5 हिजरी के अंदर अहज़ाब का ग़ज़वा हुआ था जिसके अंदर मुशरिकीन को नाकामी का सामना हुआ था। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से गए हैं, मुशरिकीन मक्का की नाक में मदीना में बैठ कर दम कर रहे हैं। हर साल एक शिकस्त मुशरिकीन मक्का का मुक़द्दर है। 5 साल मुसलसल नाकामियों के बाद 6ठे साल मुशरिकीन मक्का को अब एक नाकामी का सामना और करना पड़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को हज़ीमत का से दोचार करने के बाद 6ठी हिजरी में आकर अब जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान और सुकून से उम्रा करना चाह रहे हैं। तो मुशरिकीन मक्का की गैरत ने गवारा न किया। उन्होंने ये समझा कि अगर पुरअमन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करके वापस चले गए तो हम अतराफ़ आलम के अंदर जो मुशरिकीन हैं, जो दीगर अक़वाम आलम हैं, उनको हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं दी। मैं आपके सामने इस आयत का शान नुज़ूल रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको आयत अच्छे तरीके से समझ में आए और सहाबा का मकाम आपके जहनों में बैठ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के अंदर मुज़ाकरात के लिए भेजा और ये पैगाम दे करके भेजा कि हम आपसे जंग व जदाल के लिए नहीं आए। अगर हम जंग के लिए आए होते तो हम ये वफूद न भेजते। जंग के लिए हम बदर के मकाम पर आए थे, आपको हमने शिकस्त दी थी। हम उहद के मकाम पर आए थे, हमने आपको शिकस्त दी थी। हम ग़ज़वा खंदक में आए थे, हमने आपको शिकस्त दी थी। आज हम जंग के इरादे से नहीं आए, हम अल्लाह के दरबार में सरबा सुजूद होने आए हैं, हमें इजाज़त दीजिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकीन मक्का के पास जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सुनाते हैं। मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि ए उस्मान, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, आप हमारे लिए मुहतरम हैं, आप चाहें तो 100 उम्रे कीजिए, आप चाहें तो यही रह लीजिए, लेकिन हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब को इत्मीनान के साथ उम्रा करने की इजाज़त दें। हमारी गैरत गवारा नहीं करती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ पर मुज़ाकरात में वक्त बीत गया, वो वहाँ पर ठहरे रहे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इत्तला पहुँची कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह मुशरिकीन ने नुकसान पहुँचाया है। जब ये अफ़वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का ने नुकसान पहुँचाया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेश में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ हाथ रखा और सहाबा से कहा कि लाओ मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख कर के बैत करो, हमने उस्मान का बदला लेना है, हमने उस्मान के नामूस की हिफाजत करनी है। तमाम सहाबे किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख कर के मौत के ऊपर बैत की और ये कसम उठाई कि हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन उस्मान की नामूस की हिफाजत किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। ए मेरे नबी, जो लोग तेरे हाथ के ऊपर बैत करते थे, जिन लोगों ने तेरे हाथ के ऊपर बैत की है,
इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, उन्होंने आपसे बैत नहीं की, उन्होंने अल्लाह से बैत की है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, तुम्हारे उन हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था। ये सहाबे किराम का मकाम व मर्तबा है। सहाबे किराम की नामूस की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मकाम और मर्तबे और नामूस की हिफाजत के लिए मैदान में आए तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान में आकर के ऐलान करते हैं कि ए नबी, ये बैत सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, ये वादा अल्लाह से है। जब तक उस्मान और सहाबा किराम के नामूस की हिफाजत नहीं होगी, सहाबा किराम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस आयत के अंदर ये पस मंज़र है इस आयत का, इन्नल्लज़ीना युबायिऊन अल्लाह इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ये लोग जो सुलह हुदैबिया के मकाम पर बैत रिज़वान इसको कहते हैं, तो उस दरख्त के नीचे सहाबा किराम ने बैठ कर के ये जो बैत की थी, ये दर हकीकत सहाबा किराम की नामूस की बैत थी। मेरे अज़ीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 किस्म के लोग हुआ करते थे, या मुसलमान, या मुनाफिकीन, या मुशरिकीन और कुफ़ार। उस ज़माने के मुनाफिकीन भी कुफ़ार में शुमार होते थे। ज़ाहिरी एतबार से मुसलमान, हकीकत में वो काफिर होते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आपने मुनाफिकीन का जनाज़ा नहीं पढ़ना। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री, ए नबी, कोई मुनाफिकीन में से अगर मर जाता है तो आपने उनका जनाज़ा नहीं पढ़ना। न सिर्फ ये कि आपने जनाज़ा नहीं पढ़ना, इनकी कब्रों के ऊपर भी आपने खड़ा नहीं होना। ऐसा नहीं कि जनाज़ा कोई और पढ़ा है और आप कब्र पर खड़े हों। आपने न कब्र पर खड़ा होना है, ना इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, ना आपने इनका जनाज़ा पढ़ना है। कुरान के अंदर वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन का जनाज़ा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि वो मुसलमानों में शुमार होते थे, सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ते थे, वो मार्कों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लड़ते थे। लेकिन जब ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इस हुक्म के नुज़ूल से पहले, जब मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल जब उसकी वफ़ात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं इसका जनाज़ा पढ़ दूँ तो क्या पता अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फ़रमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम थे, मुसलमानों के ऊपर शफ़क़त किया करते थे। आप चाहते थे कि कोई जहन्नुम का ईंधन ना बने। आपने फरमाया, मैं जनाज़ा पढ़ के देखता हूँ। अल्लाह ने मुझे आज तक मना तो नहीं किया मुनाफिकीन का जनाज़ा पढ़ने से, अगर चाहिए मुनाफिक है, लेकिन मैं जनाज़ा पढ़ के देखता हूँ, क्या पता मेरे जनाज़े की बरकत से अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमाया कि आपने जनाज़ा नहीं पढ़ना, यह मुनाफिक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिक ज़रूर है, लेकिन अभी तक आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुनाफिकीन का जनाज़ा पढ़ने से मना नहीं फरमाया, लिहाजा मैं जनाज़ा पढ़ूँगा। जनाज़ा पढ़ने के बाद अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि नबी, आपने मुनाफिकीन का जनाज़ा नहीं पढ़ना। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री, क्या आपने जनाज़ा नहीं पढ़ना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाज़े से माज़रत कर ली। मुनाफिकीन का जनाज़ा नहीं पढ़ते थे, मोमिनीन का जनाज़ा पढ़ते थे। अहले इस्लाम का जनाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ाया करते थे। लेकिन जब बात आई सहाबा के नामूस की तो एक जनाज़ा आपके सामने लाया गया। आपने फरमाया, मैं इसका जनाज़ा नहीं पढ़ूँगा। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, आपने जनाज़े से इनकार किया, हालांकि वो सही सालिम सही मुसलमान, किसी को इसकी मुनाफ़क़त का भी इल्म नहीं है। आपने जनाज़ा पढ़ने से इनकार किया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा, आप हमेशा जनाज़ा पढ़ाया करते थे, आज ये क्या मामला हो गया है, क्या माजरा हो गया। आपने फरमाया, ये मेरे साहबा से बुग़्ज़ रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो शख्स है जिसका जनाज़ा आप मेरे सामने लाए हैं, ये हज़रत उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, मेरे साहबा से बुग़्ज़ रखने वालों का मैं जनाज़ा नहीं पढ़ाया करता। ये साहबा का मकाम और मर्तबा।